स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं कर्नाटका में जो समिट हो रहा है वहां पर कुछ झलकियां निकल कर आ रही हैं। लगातार हमारी कवरेज बनी हुई है, आपको वहां लिए चलते हैं। Participants, we have with us couple from Reliance sitting to the extreme right there. We have Venu, who's with Hitachi, which is the joint group today, Hitachi ABB. We have Adlan from Petronas, and we have Vijay Nirani from MRN Group, which is the bioenergy-based group. So basically, ethanol and bio-based energy is their forte. So we have a diversity of different sectors represented here, as you can see. We'll probably start with Kapil, because homegrown industry, everybody is looking to RIL to see what will the company do to push India towards energy sufficiency. To that extent, Kapil, your chairman made an announcement 2 years ago about 111, which is basically getting a kilogram of hydrogen at about $1, which can be a game changer for India. And as you know, that changes the way industrial heat is possibly looked at, because today that's the biggest barrier. What preparations have gone in after that announcement has been made, to the extent that you're able to sort of disclose to this audience here, Kapil? Thanks. Possibly, the whole vision of 111 is that India would be, for the first time, an net energy exporter. So we feel and demonstrate that India could be the #1 exporter of green hydrogen in next 1 decade, supplying to the world green hydrogen at $1 per kg. So that's how the vision of 111 was arrived at. Particularly if you talk of green hydrogen, at this moment also country consumes 6 to 7 million metric tons of hydrogen, which is largely gray. And people, even at the government of India, the target is that by 2030 we would be around 5 million metric tons of green hydrogen by 2030. We being producer and consumer of hydrogen ourselves have a vision that if we at Reliance want to be net zero by 2035, one of the key initiatives would be to figure out how do we decarbonize and take charge and control of our own GHG emissions and inventories. So the major step towards that, the good part towards the green hydrogen vision and mission, what the country is working. So February this year, there was an hydrogen policy by Government of India which was announced, and the hydrogen mission is probably at the verge of coming, which would, for the first time, even as part of policy, the country announced that we would be providing banking for projects and ISTS waiver for projects which are done before June 2025. And this is a very, very bold step, I would say. Even some of those developed countries haven't provided such an incentive to bank the renewable power and then use it for green hydrogen production. So that's a very, very progressive step towards announcing that policy. The second part of the mission, which would now be working more towards the demand creation, which was possibly missing in the whole policy which was announced in Feb, would now be coming, which would then derive for certain industries as to what green hydrogen compliance obligation could be. For the first time, I would see where we are, rest of the world is also there. So, we are no more going to be a follower. We have all the chance to become a leader in an industry. बिल्कुल, तो ये कर्नाटक में 2 दिवसीय समिट चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है और वहां पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। इस बीच बिरला सन लाइफ एएमसी के CIO महेश पाटिल का कहना है कि भारत में महंगाई ज्यादा बड़ी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन दरों में लगातार बढ़ोतरी से रुपए पर दबाव पड़ सकता है। यहाँ पे इंडिया में RBI का जो स्टैंड है वो एक तो ग्रोथ यहाँ पे अपनी ठीक ठाक है। उसके मुकाबले अगर इन्फ्लेशन देखा जाए इंडिया में तो जहाँ की US में इन्फ्लेशन 7-8% है, उनका टारगेट 2% है। यहाँ पे इंडिया में हमारा RBI का टारगेट 4%, तो इन्फ्लेशन जस्ट अबाउट 7% है। तो इन्फ्लेशन की इतनी ज्यादा कंसर्न नहीं है इंडिया में, हालांकि ऊपर है बट ज्यादा इतना कंसर्न नहीं है। तो वो हिसाब से आई थिंक RBI का जो रेट हाइक की जो साइकिल है
वहाँ पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से इतनी ज़्यादा ये नहीं है, बट क्या हो रहा है कि ग्लोबल अगर यूएस फेड रेट हाइक जोरों से कर रहा है, और अभी जो पॉलिसी हुई वहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की है, और यूएस में लग रहा है कि अगले मार्च तक वो पॉलिसी रेट्स अराउंड 5.25 to 5.5% तक लेके जाएंगे। तो अगर इतनी तेजी से वहां पे रेट इंक्रीज होगी तो आरबीआई के यहाँ पे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर रहेगा कि इंटरेस्ट ऊपर करे, बिकॉज एक तो यूएस डॉलर के स्ट्रेंथन हो रहा है, और अगर रेट डिफरेंशियल ज्यादा बढ़ेगा तो रुपी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। हमने देखा है कि रुपी रिसेंटली थोड़ा डिप्रिशिएट हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे आरबीआई का वही कंसर्न थोड़ा रहेगा कि जो डिफरेंशियल है यूएस के इंटरेस्ट रेट और अपने इंटरेस्ट रेट के, वो ज्यादा ना बढ़े, और उसके अगर ज्यादा रहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो सकता है, तो रुपी पे प्रेशर आ सकता है। डोमेस्टिक सेक्टर जैसे हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, वहां पे भी ग्रोथ काफी ठीक ठाक है, और एक्चुअली कमोडिटी प्राइसेस जो नीचे आए उसका बेनिफिट अभी कंपनीज को फ्लो थ्रू हो रहा है। तो आई थिंक सबको मिला जुला के देखते हैं तो अर्निंग्स ग्रोथ काफी ठीक ठाक लग रही है। ये साल की भी ग्रोथ हमें अराउंड 15 to 17% निफ्टी ग्रोथ दिख रही है। वहां पे दो सेक्टर्स है, जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर है और मेटल सेक्टर है। वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी डाउनग्रेड हुई है, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गए हैं। उसके अलावा बाकी सब सेक्टर्स में मोर और लेस अर्निंग्स ग्रोथ इन लाइन है। तो आई थिंक नहीं लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर ऊपर भी जाते हैं यहाँ से अनदर 50 बेसिस पॉइंट और सो, उसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। और काफी कंपनीज की जो अभी देखें जाए तो बैलेंस शीट्स काफी अच्छी हो गई है, सुधर गई है लास्ट 2-3 साल में। ओवरऑल डेट जो कंपनीज के बैलेंस शीट पे है, कॉर्पोरेट डेट जो बात करते हैं, और डेट टू इक्विटी रेशियो, वो काफी कम हो गया है। काफी कंपनीज ने डीलेवरेज किया है। तो जो रेट हाइक का जो इम्पैक्ट आएगा पीएनएल पे, वो काफी मात्रा में काफी कम होगा। सो हमें लग रहा है कि अगले 2 साल के लिए, 2-3 साल के लिए कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, जिस तरह से काफी सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं, डोमेस्टिक सेक्टर जैसे कैपिटल गुड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट साइकिल में पिकअप हो रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर ठीक ठाक कर रहा है, और आईटी सेक्टर में भी काफी वाइल थोड़ी डाउनग्रेड ग्रोथ स्लो डाउन है, बट इतनी ज्यादा स्लो डाउन नहीं दिख रही है। तो ये थे महेश पाटिल बाजार पर राय देते हुए। लेकिन चलिए अब आज किस तरह का बाजार का सेटअप था, कौन कौन से सेक्टर चले, कहां पर मंदी थी, ये सब समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। डिम्पी बताइए। फेड के फैसले के बाद आज मार्केट को रिएक्शन देने का फर्स्ट डे था और उसने 75 बीपीएस जो फेड ने दरें बढ़ाई हैं उसका रिएक्शन बखूबी दिया। आज बैंक निफ्टी जो पिछले 3 दिन से एक रेंज के अंदर था, टिपिकली उसने आज न केवल अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया बल्कि क्लोजिंग भी बहुत अच्छी की। 41,200 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। निफ्टी ने करीब 18,000 के लेवल्स को कॉन्कर करके रखा। पहले ही 5 मिनट में निफ्टी ने 18,000 जो कॉन्कर किया, दिन भर में उस लेवल को छोड़ा नहीं और आज 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कुल मिला के फेड के झटके को मार्केट ने बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया और मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग भी दी है। इंडिया विक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर ये वॉलिटिलिटी एक रेंज की लगती थी, क्योंकि 17 के नीचे का विक्स चल रहा था। अगर यही विक्स 20 के ऊपर का होता तो आपको वॉलिटिलिटी कम से कम निफ्टी में ही 400 पॉइंट की मिल जाती। इसलिए एक रेंज का मार्केट, एक सधा हुआ बाजार आज क्लोज करके गया है। खैर, निफ्टी के टॉप गेनर्स की तरफ बढ़ते हैं जो आज मार्केट को काफ़ी हेल्प करते हुए दिखे। उसमें अगर आप देखेंगे तो एसबीआई का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था, वेटेज के तौर पर भी, कन्विक्शन के तौर पर भी, और इसने बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छे से आज पुश किया ऊपर की तरफ। भारतीय एयरटेल, टाइटन और इंडसइंड बैंक कुछ एक और शेयर्स थे जो कि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं। निफ्टी का जो लूजर्स था वो टिपिकली उसमें आपको आईटी कंपनीज दिख रही होंगी। एक्चुअली आईटी वर्सेस बैंक मार्केट के अंदर ये वेटेज की लड़ाई रहती है। जब मार्केट एक रेंज का रहेगा तो आईटी वर्सेस बैंक आपने सामने आपको खड़े होते दिखेंगे। अगर आज बैंकिंग काउंटर्स का दबदबा था तो आईटी बैकफुट पे चला गया, उसमें टेक महिंद्रा लूजर बना, इन्फोसिस लूजर था। इसके अलावा देखेंगे आप हिंडाल्को, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ये 3 ऐसे हैं जो नॉन आईटी शेयर्स थे, बल्कि इनके आज लाल निशान हमको बनते हुए दिखे हैं। आप मिड कैप श्रेणी में अगर आएंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिखेगा। और एक और चीज़, अगर आप ओवरऑल मार्केट को देख रहे हैं तो एडवांस डिक्लाइन बाजार का काफ़ी अच्छा है और ठीक इवेंट से पहले एफआईएस की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी।
45% वो लॉन्ग्स थे होल्डिंग के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आज जो FIs का नंबर आएगा शाम को वो भी बेहद खराब नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो बेहद खराब नहीं होगा। आ जाते हैं मिड कैप की श्रेणी के अंदर। यहाँ पे गेनर्स अगर आप चेक करेंगे तो आपको इंडिगो पेंट्स, M&M फाइनेंस, इसके अलावा रिट्स, साथ ही रेडिंगटन, ये पिछले 2 दिन से शेयर चल रहा है। प्रीवियस डेट 10% और आज करीब 5% का मूव इस शेयर ने दिया है। सुबह सुबह ही इसने अच्छी बढ़त बनाई और दिन भर में नहीं खोई है। आते हैं मिड कैप के लूजर्स पे। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स के DVR के अंदर टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसके अंदर डाइवर्जेंस है टाटा मोटर्स के DVR और टाटा मोटर्स में। DVR पहले चल गया था इसलिए आज प्रॉफिट बुकिंग ये करवा रहा है। इसके अलावा वोल्टास, साथ ही रिलैक्सो जिसके नंबर्स खराब आए, 67% का प्रॉफिट कट आया, उसको आज पनिशमेंट दी है मार्केट ने। साथ ही CG पावर भी आज लाल निशान में बंद हुआ है। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में अगर आप साल का हाई देखेंगे ना तो एक लंबी सूची है, उसमें से कुछ एक शेयर्स मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसमें रिट्स है, साथ ही वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। ये शेयर पिछले 2 दिन से चल रहा है। आज की क्लोजिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है, 5% के ऊपर की है। और ये मजगांव डॉक, इन्होंने भी आज का साल का हाई टेस्ट किया है। साथ ही फेडरल बैंक, छोटे मझोले शेयर्स में फेडरल बैंक पहले रेंज तोड़ता नहीं था, अब रेंज रोकता नहीं है, लगातार अच्छा दिखा रहा है मूवमेंट और आज भी अपने साल के हाई पे पहुंच गया। तो कुल मिला के मार्केट ने 75 BPS का जो झटका है उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। चलिए, ये था मार्केट का अपडेट आपकी स्क्रीन पर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टीना स्वदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।